Hello everyone, this is Professor Ashish Kumar Nayyar. I welcome you all to my channel Prodigy Tutorial. So if you are new here, consider subscribing and do not forget to click the bell icon. Thank you. So today new topic that we'll be learning will be static data members and member functions. You all have seen that we can build classes in C++, and what we actually put in a class are data members and we keep functions in class. And the general tendency is that we try to keep data in the private section and member functions in public section. Though there is no hard and fast rule कि ऐसा ही होगा, you can always put your data in public and your functions in private also. But जो जनरली करते हैं वो हमेशा याद रखना चाहिए, हम डेटा को प्राइवेट, मेंबर फंक्शंस को पब्लिक में रखते हैं. तो देखते हैं ये टॉपिक क्या है, इसके बारे में समझते हैं हम. सो लेट अस लुक एट static data members and member functions. So in this we shall first try to understand the need and purpose of this static data members and member functions, and I shall try to explain the entire thing by giving you some examples. With the help of some examples we will try to understand the need and purpose of this topic. So the very first example that I will share with you is, have you heard about binary semaphore concept? In operating system there is a concept of semaphores. Semaphore क्या होता है basically? Whenever we talk about an environment wherein multiple users try to share resource, say for example you have a computer lab in which there are 30 computers available, but how many printers generally you find in a lab of 30? With 30 computers we generally have 1 or 2 printers at most. 30 machines पे 30 printer नहीं देखे होंगे कभी भी. So what I mean to say is printer becomes a shared resource. ये एक एग्जाम्पल, ठीक है. दूसरा एग्जाम्पल क्या हो सकता है? You might have heard that there can be multiple users competing to write something to a file. You have already learned a paper, database management system, and in database management system we learned a topic on transactions, in which you were made to go through schedules, the serializability of schedules and so many things you learned, and locking techniques were also explained to you. अभी लॉकिंग वगैरह क्या थी, लॉक क्यों करना पड़ता है? क्योंकि से फॉर एग्जांपल मल्टीपल यूजर्स ट्राई टू बुक अ पर्टिकुलर सीट इन इंडियन रेलवेज. टिकट खरीद रहे हैं, सीट बुकिंग कर रहे हैं, एंड देयर इज ओनली वन सीट अवेलेबल and multiple users are trying to compete to book that particular seat. So what actually happens is that seat will only go to one user, not to multiple users. ऐसा तो नहीं होता ना कि एक सीट 4 लोगों को मिल जाए फिर झगड़ा शुरू हो जाए. तो अब ये काम कैसे इंश्योर होगा कि सीट एक ही आदमी को मिले? तो what we do is we lock the file. Before writing anything onto the database, we first of all try to lock the data item, then we execute the transaction over that. ये तो आपको पढ़ाया गया होगा, थोड़ा बहुत याद भी होना चाहिए आपको, है ना. तो अब बात यह आई कि शेयर्ड रिसोर्स वाली चीज हो गई. ये जो सीट आप बुकिंग कर रहे हैं, ये सीट भी क्या हो गया, मैं क्या कह रहा हूं, सीट क्या हो गया, हमारी शेयर्ड रिसोर्स हो गई, ठीक है. अब शेयर्ड रिसोर्स की बात करेंगे तो फिर क्या होगा, एक बच्चे ने अगर सीट बुकिंग को लॉक कर दिया है, से फॉर एग्जाम्पल there is a student Siddharth and Siddharth has locked the seat, he wants to book the seat, so that seat will nobody करिएगा आपने? नहीं, अभी नहीं किए हैं बेटा, अभी स्लाइड चेंज नहीं की है मैंने. आई एम जस्ट गिविंग यू सम एग्जांपल्स. if you wish to book a seat and there is only one seat left and Siddharth has already applied a lock over that seat, then no other student, no other citizen of India, no other human being will be allowed to continue with the reservation, क्योंकि उसने लॉक कर लिया है राइटिंग मोड पे. ओनली वन ट्रांजेक्शन इज अलाउड टू अप्लाई राइट लॉक एट अ टाइम, एंड वंस दैट ट्रांजेक्शन इज डन, जब उसका काम खत्म होगा तो वो राइट लॉक रिलीज कर देगा. जैसे ही राइट लॉक रिलीज होगा दूसरे यूजर्स उस फाइल को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे. तो अब राइट लॉक कितने होंगे? राइट लॉक तो एक होगा ना. अब सवाल यह है कि बाकियों को कैसे पता चलेगा कि वो राइट लॉक रिलीज हो गया? तो उसके लिए सेमाफोर टाइप का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा. सेमाफोर कॉन्सेप्ट क्या होगा? बाइनरी सेमाफोर, कि इफ द रिसोर्स दैट एवरीबडी वांट्स टू यूज इज ऑन बिजी स्टेट, इफ द रिसोर्स इज ऑन बिजी स्टेट, nobody else will allow to acquire that resource. They will have to wait.
until and unless the first person releases the resource. And when the first person who first of all acquired the resource releases the lock over that resource, then others will be allowed to make use of it. तो इस कॉन्सेप्ट में क्या होगा, हमें एक शेयर्ड लॉक की जरूरत होगी. तो ये शेयर्ड वर्ड जो मैं बोल रहा हूं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंस रखता है इस स्टैटिक डेटा मेंबर वाले कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. ठीक है. अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं. आप अब तक बहुत सारी क्लासेस बना चुके हैं. वी हैव बीन लर्निंग हाउ टू क्रिएट डिस्टेंस क्लास एंड सो मेनी क्लासेस वी हैव बीन क्रिएटिंग. बट इफ आई आस्क यू टू प्रोवाइड मी काउंट ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट मे एग्जिस्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम. आपका प्रोग्राम रन हो रहा है, आपने 4 ऑब्जेक्ट बनाए, 5 बनाए, 6 बनाए, जितने मर्जी बनाइए. मगर मैं किसी भी समय ये जानना चाहूं कि मेरी क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स किस समय एग्जिस्टेंस में हैं, तब भी मुझे एक ऐसा वेरिएबल चाहिए होगा जो शेयर्ड हो, सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में शेयर हो जाए, और जब भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, जब भी एक नया ऑब्जेक्ट बने, वो वेरिएबल इंक्रीमेंट किया जाए. अगर मैं ऐसा कुछ प्रोविजन कर दूं कि आई क्रिएट अ शेयर्ड वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल गेट्स मॉडिफाइड, इट्स वैल्यू गेट्स इंक्रीमेंटेड व्हेनेवर आई क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट. जब भी ऑब्जेक्ट बनाऊं उसकी वैल्यू चेंज हो जाए. तो भाई अगर मैं उस वेरिएबल को कभी भी प्रिंटिंग में डालूंगा, अगर वो मुझे प्रिंटिंग में 5 दिखा रहा है, मतलब क्या हो गया, 5 ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट इन द सिस्टम. एंड इफ दैट काउंट कम्स टू बी 6, इट मींस 6 ऑब्जेक्ट्स आर लाइव एट अ टाइम. ठीक है. तो एक कॉमन ऐसा वेरिएबल चाहिए होगा मुझे, शेयर्ड वेरिएबल चाहिए होगा, जो सारे ऑब्जेक्ट्स के बीच में यूज होगा, शेयर किया जाएगा. तो ये शेयर वर्ड को बार बार मैंने एम्फेसाइज किया, क्योंकि स्टैटिक डेटा मेंबर्स आर नथिंग, they are shared data members. Now to understand this thing, let us see what is there in this presentation. So very first thing, static data is class data because only one copy of that data member exists and is in turn shared by all existing objects. देखो word आ गया shared. हमने क्या कहा कि जो static data होगा, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, वो ऑब्जेक्ट डेटा नहीं होगा, वो क्लास डेटा होगा. इसका मतलब एक डायग्राम से समझते हैं. देखिए यहां पे एक क्लास आपको नजर आ रही है. आई होप स्लाइड्स चेंज हो रही हैं बेटा. कैन यू सी दिस एग्जांपल, क्लास आइटम चेंज हो रही है. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी. So here in the example we have a class named as item, and inside this class, if you pay attention, we have 2 data members. One is count, int count, other is int number. But int count is not an ordinary data member. It is static in nature. It is special in nature. इसके आगे देखो एक कीवर्ड लिखा हुआ है static. काउंट के आगे कीवर्ड आ गया static, मगर नंबर के आगे static नहीं है. मतलब मेरी क्लास में मेरे पास 2 तरह के डेटा मेंबर्स हैं. In my class I have 2 types of data members. Count, which is static in nature. Number, which is non-static in nature. Now let us see what will be the difference between a static data member, count, and non-static data member, number. So let us look at this diagram. This diagram explains that, say for example, we created 3 objects. Object 1, object 2, and object 3. I created 3 objects for my class. Then every object will have its own copy of data member number. देखो ऑब्जेक्ट 1 की ऑब्जेक्ट 1 डॉट नंबर, ऑब्जेक्ट 2 डॉट नंबर, ऑब्जेक्ट 3 डॉट नंबर. 3 ऑब्जेक्ट्स हैव 3 डिफरेंट कॉपीज ऑफ विच डेटा फील्ड, नंबर. यहां देखो इंट नंबर लिखा हुआ है, लाइन नंबर 2 इनसाइड क्लास. इंट नंबर इज नॉन स्टैटिक इन नेचर, मीन्स व्हाट, दैट एवरी ऑब्जेक्ट विल हैव इट्स ओन कॉपी ऑफ नंबर डेटा फील्ड. बट इफ यू लुक एट दिस काउंट, count is a class data member but it is shared among all objects. इसकी 3 कॉपी क्रिएट नहीं हुई हैं. इस डेटा मेंबर काउंट की 3 कॉपी नहीं बनी. ऑब्जेक्ट 1, ऑब्जेक्ट 2 एंड ऑब्जेक्ट 3, all objects are utilizing the same shared memory location. No 3 memory locations exist. यहां पे तो इसके लिए 2 बाइट, इसके लिए 2 बाइट, इसके लिए 2 बाइट अलग अलग बनी ना, मगर इसके लिए एक ही बार मेमोरी रिजर्व हुई है. तो स्टैटिक डेटा मेंबर के बारे में क्या चीज समझ में आती है? स्टैटिक डेटा मेंबर काउंट इज अ शेयर्ड डेटा मेंबर दैट इज शेयर्ड अमंग 3 ऑब्जेक्ट्स. नॉट ओनली 3, इफ यू क्रिएट 3000 ऑब्जेक्ट्स, only one copy of count will exist, but for 3000 objects
3000 different locations to store their number data field will exist in the system. इतनी बात समझ में आई आपको या नहीं आई, ये बताओ पहले. This is one difference between static and non-static data. Static data is something that is shared among all objects. And number is something जिसके आगे static नहीं लिखा, it is something that we can say it is non-static. And till date, whatever data fields you have been creating inside class, you never wrote static along with. आपने कभी उनके आगे static नहीं लिखा था. So what type of data you were creating till date? Non-static data. Means the copy of that data element exists for every individual object that you create in main. Not only in main, in any other function also. If you create an object, it gets separate copy of data. But static data, you do not create multiple copies. Only one copy exists in system. This is one fact that I have explained. स्टैटिक के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं. पहली बात तो जो बताई मैंने वो आपको समझ में आ जानी चाहिए कि जिस चीज के आगे स्टैटिक लिख दिया जाएगा उस डेटा फील्ड को हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी नहीं मिलने वाली है. सब ऑब्जेक्ट इसी मेमोरी को यूज करेंगे. तो ये एक सिग्नल का काम कर सकती है. सिग्नल का काम क्या कर सकती है कि आई हैव अ कॉमन वेरिएबल दैट आई विल यूज इन माई फाइल. ठीक है, उसकी स्टेट अगर 1 है तो क्या दिखाई देगा सबको कि फाइल इज बीइंग यूज बाय समबडी. फाइल बिजी स्टेट पे है. मान लो 3 ऑब्जेक्ट्स हैं. ऑब्जेक्ट 1 ने इस काउंट की वैल्यू को 1 कर दिया तो ऑब्जेक्ट 2 को क्या नजर आएगा 1. ऑब्जेक्ट 3 को भी 1 नजर आएगा. मींस सिंस ऑब्जेक्ट 1 इज यूटिलाइजिंग दिस पर्टिकुलर वेरिएबल, मींस since object 1 is writing some particular file that has this variable, no other object will be allowed to acquire access to over this. क्योंकि राइटिंग एक ही को करने देनी है ट्रांजैक्शन को. और जब इसका काम खत्म हो जाएगा ये इसकी वैल्यू को 1 से 0 बना देगा. जैसे ये 0 बनाएगा सबको क्या नजर आएगा 0. सो अदर ऑब्जेक्ट्स वेटिंग इन द क्यू, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर में या जिस भी ऑर्डर में वो वेट कर रहे हैं. इफ यू आर यूजिंग प्रायोरिटी क्यू यू माइट हैव असाइन्ड सम प्रायोरिटीज. तो जो भी ऑर्डर आपने लिया है उस ऑर्डर में जो पहला ऑब्जेक्ट होगा अब अगला कंपीटिंग ऑब्जेक्ट उसको ये रिसोर्स मिल जाएगा. बात समझ में आई कि नहीं आई? शेयर्ड रखने का पर्पस समझ में आया? एक तो पर्पस फाइल वाला बता दिया, दूसरा पर्पस फिर से ये वाला बताना सर. फिर से बताता हूं. मान लीजिए आपके पास एक फाइल है और उस फाइल को मैंने क्या कहा उसमें 3 बच्चे एक साथ नहीं लिखेंगे. अभी देखो कॉलेज में अगर अटेंडेंस के लिए एक मैं रजिस्टर रिसेप्शन पे रख दूं और आपको बोलूं जाओ उसमें अपनी अटेंडेंस मार्क करके आओ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना रजिस्टर में 4 बच्चे एक साथ पेन से लिखना शुरू कर देंगे. आप लाइन बना लोगे, जो लाइन में आगे खड़ा है पहले वो लिखेगा, फिर उसके बाद पीछे वाला लिखेगा, फिर उसके बाद उसके पीछे वाला बच्चा अपनी एंट्री करेगा उस रजिस्टर में. तो 1 एट अ टाइम ही होगी ना एंट्री. 10 लोग एक साथ नहीं लिख सकते उसको. तो ऐसा काम जहां पे मेरे पास एक ही रजिस्टर है और क्लास के 60 बच्चों को उसे यूज करना है तो मुझे ये दिखाना होगा ना कि माई रजिस्टर इज बीइंग यूज्ड बाय समबडी, अदर्स हैव टू वेट. तो ये मैं कैसे दिखाऊं? अगर मैं नंबर फील्ड में दिखाऊंगा तो इसकी नंबर कॉपी अलग कुछ बता रही है, इसकी नंबर कॉपी कुछ अलग वैल्यू दिखा रही है, काम नहीं चलेगा. मगर अगर मैं स्टैटिक फील्ड बनाऊंगा और ऑब्जेक्ट 1 ने जब इस स्टैटिक फील्ड को 1 सेट कर दिया तो ये 1 बाकी ऑब्जेक्ट्स में अपने आप रिफ्लेक्ट हो रहा होगा. इनके लिए क्या सिग्नल है कि एटिकेट्स क्या कहते हैं? प्लीज वेट इन क्यू, फाइल इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड. एक और एग्जांपल दूं, थोड़ा वियर्ड लगेगा सुनने में. ट्रेन में ट्रेवल करते हो तो ट्रेन के कोच के अंदर लेवेट्री जो होता है और रेस्ट रूम जिसे कह सकते हो टॉयलेट, वो टॉयलेट तो 4 ही होते हैं ना एक डिब्बे में. अब सवारियां तो 72 हैं, टॉयलेट हैं 4. आप अपनी सीट पे बैठे हो तो टॉयलेट जाने से पहले आपने देखा होगा तो वहां पे ऊपर एक रेड और ग्रीन कलर का कुछ सिस्टम लगाया होता है जिससे बिजी या वो फ्री स्टेटस दिखाता है. ये तभी समझ में आएगा अगर आप ट्रेन में फ्रीक्वेंटली ट्रेवल कर चुके हैं. तो वो ग्रीन मीन्स कि टॉयलेट इज फ्री, यू कैन गो एंड यूज इट. और इफ इट इज शोइंग रेड कलर इट मीन्स समबडी इज ऑलरेडी यूजिंग इट, यू प्लीज वेट एट योर सीट ओनली. वहां जाने की जरूरत नहीं है अभी आपको. तो कॉमन वेरिएबल मिल गया ना. इफ ऑब्जेक्ट 1 मेक्स दिस वैल्यू, it sets this value to say for example it sets it to 10. 1 ही जरूरी नहीं होता, कुछ भी हो सकती है, 10 हो गई. तो इनको क्या बता रखा है कि भैया इफ वैल्यू इज 10 प्लीज वेट इन द क्यू अनलेस द वैल्यू इज मॉडिफाइड. जब खाली हो जाएगा तो मैं उसको 9 कर दूंगा या मैं उसको 11 कर दूंगा. तो इनको पता चल जाएगा. जैसे ही मैं उसको 11 करूंगा इन सबको 11 दिख रहा होगा. तो ये संभव कब है? जब तीनों ऑब्जेक्ट के लिए एक शेयर्ड मेमोरी लोकेशन हो और तीनों ऑब्जेक्ट उसी मेमोरी लोकेशन को देख रहे हो. अगर 3 ऑब्जेक्ट की 3 मेमोरी बनाऊंगा तो सब अपनी अपनी मेमोरी देख रहे होंगे, फिर कैसे पता चलेगा? बात समझ में आई या नहीं आई? इज दिस अंडरस्टूड? यस सर.
चलिए, Yes, sir. तो पहला फैक्ट तो मैंने बता दिया, static data is something that is shared among all objects. This is one fact that I have explained. अभी और भी इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, वो बताता हूं आपको. देखो, नंबर, this data field which is non-static, this I will say this is object data, because a separate copy for individual objects will exist. So this is object data, but this is not object specific data, this is class data. तो मैं स्टैटिक डाटा को क्या कह सकता हूं कि ये किसी एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक क्लास की प्रॉपर्टी है. इसको सारे ऑब्जेक्ट्स शेयर करने वाले हैं, तो किसी एक ऑब्जेक्ट का इसके ऊपर इंडिविजुअल हक नहीं बनता. ठीक है, ये डिफरेंस समझ में आया दोनों को. तो स्टैटिक की डेफिनेशन में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, स्टैटिक डाटा इज क्लास डेटा. वी नेवर से स्टैटिक डाटा इज ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी. ठीक है, वो क्लास डेटा है. तो क्लास डेटा मतलब शेयर्ड है. जब आप लैब में बैठते हैं और देयर आर 60 स्टूडेंट्स सिटिंग इन अ लैब एंड वी हैव ओनली वन प्रिंटर, सो नो स्टूडेंट इज अलाउड टू राइज एंड से कि दिस प्रिंटर इज माई प्रिंटर. दैट प्रिंटर इज नॉट इन anybody's property, any individual's property. It is shared among all individuals. It is something that is to be shared. तो वो क्या कहलाएगा? वो क्लास की प्रॉपर्टी तो कहला सकता है, मगर वो किसी एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगा. ठीक है, बात समझ में आई? हाँ, मगर जिस कंप्यूटर पे आप काम कर रहे हो, कह सकते हो सर प्लीज कम टू माई कंप्यूटर, आई हैव अ प्रॉब्लम, प्लीज हेल्प मी आउट. तो मैं आपके कंप्यूटर पे जाऊंगा. आप जिस कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं उससे आप अपनी प्रॉपर्टी बता रहे हैं. समझ में आ गई बात कि वो आपका कंप्यूटर है, आपको असाइंड है, आपके लिए एक्सक्लूसिवली वो डेडिकेट किया गया, आप ही उस पे काम करेंगे. तो आप कह सकते हैं दिस इज माई कंप्यूटर, दैट इज ऑब्जेक्ट डेटा. बट shared resource, since it is to be shared among all objects, it is not the property of any individual object. So we say that static data is class data. तो ये बात भी समझ में आई कि नहीं आई, मुझे बताओ. ठीक है, चलो. अगर नहीं आएगी ना, जहां पे भी नहीं आएगी वहां मुझे रोक देना. चलो, लास्ट लाइन देखो यहाँ पे स्लाइड पे. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है. जी सर, इसका मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर सब ऑब्जेक्ट्स हैं और प्रिंटर जो है हमारा डेटा मेंबर जैसा काम कर रहा है. कंप्यूटर ऑब्जेक्ट नहीं है, उस पे काम करने वाले स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट हैं. कंप्यूटर पे काम करने वाले स्टूडेंट्स कौन है? ऑब्जेक्ट. और डेटा मेंबर्स क्या है लैब में? नॉन स्टैटिक डेटा मेंबर आपके कंप्यूटर्स हैं और स्टैटिक डेटा मेंबर आपका प्रिंटर है. ओके सर, ठीक है ना. तो ऑब्जेक्ट कौन हुए? हमारे स्टूडेंट्स. और नॉन स्टैटिक डेटा क्या हुआ? अगर एनालॉजी समझ रहे हो तो नॉन स्टैटिक की बात हो गई तो वो हो गया आपके पीसी जो 30 लगे हुए हैं या 60 लगे हुए हैं. मगर प्रिंटर क्योंकि वो एक है और सबके बीच में यूज होना है, तो वो क्या हो गया? हमारा स्टैटिक डेटा. अब क्योंकि ये क्लास डेटा होता है, स्टैटिक डेटा इज क्लास डेटा, सो मेमोरी फॉर दिस डेटा इज क्रिएटेड मच बिफोर एनी ऑब्जेक्ट गेट्स क्रिएटेड. क्योंकि ये क्लास डेटा होता है, इसके लिए मेमोरी किसी ऑब्जेक्ट के बनने से पहले ही एलोकेट हो जाएगी. ये बात याद रखनी है. मतलब आपके पूरे प्रोग्राम में ये नंबर के लिए मेमोरी कब बनेगी? इफ यू क्रिएट ऑब्जेक्ट 1, object1, तो पहला ऑब्जेक्ट जैसे ही बनाओगे 2 बाइट्स इस नंबर के लिए रिजर्व होंगी. व्हेन यू क्रिएट ऑब्जेक्ट 2, another 2 bytes for number gets created. When you create object 3, another 2 bytes gets reserved in memory. Space is reserved. But what if I never create any object? मैं कोई ऑब्जेक्ट ना बनाऊं, ठीक है, तो मेरे काउंट के लिए मेमोरी होगी एलोकेट या नहीं होगी? यहां देखो, क्लास के बाहर इससे पहले कि आप काम शुरू करें, आपको ऐसी एक लाइन लिखनी होती है जहां पे आपको काउंट का रिटर्न टाइप बताना है. काउंट का रिटर्न टाइप क्या है? इंट. तो मैंने इंट लिख दिया. ये स्टैटिक डेटा किस क्लास का डेटा है? क्लास डेटा बोलते हैं ना इसको. तो ये किस क्लास का डेटा है? देखो क्लास का नाम लिखा है. देन वी राइट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर and we write the name of the field. Means the moment you write this thing, memory, if you are working on 16-bit machine, 2 bytes memory for storing this integer, 2 bytes memory for storing this integer gets allocated then and there, even without creating any object.
ठीक है, क्योंकि ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है ही नहीं, तो ऑब्जेक्ट का वेट क्यों करें, इसको तो बनाना ही होगा ना क्लास में। तो एक लाइन जैसे ही आप ये लाइन लिखोगे, आपके लिए 2 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगी। मतलब बिना ऑब्जेक्ट बनाए भी आप इस काउंट को यूज करना चाहोगे, कर सकते होगे। ये आगे एग्जाम्पल में अभी आपको मैं शो करूंगा। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट है जो आपको बताना था कि मेमोरी काउंट के लिए ऐसे डिक्लेरेशन करने से रिजर्व होती है, और ये लाइन अपने कोड में लिखना मस्ट एंड शुड है। अगर आप ये लाइन नहीं लिखेंगे, आपका कोड रन नहीं होगा, ये आपको लिखनी होगी। ठीक है, चलो आगे देखो। ये डायग्राम में आपको समझा चुका हूं। नाउ some facts and properties, let us read them out. All static variables are initialized to 0 before the first object is created. Whenever you create any integer static variable, जो कि स्टैटिक है और इंटीजर है, तो उसकी इनिशियलाइजेशन अपने आप 0 से हो जाती है। कंस्ट्रक्टर से उसको एक लीगल वैल्यू 0 देने की कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली 0 से ही तैयार होगा। फ्लोट के केस में 0.0, कैरेक्टर्स के केस में स्पेस होगी। ठीक है, तो जो भी आप स्टैटिक वेरिएबल बनाएंगे वो अपने आप ऑटो इनिशियलाइज हो जाता है 0 से। डिक्लेयरिंग अ स्टैटिक मेंबर विद इन अ क्लास डज नॉट एलोकेट स्टोरेज स्पेस फॉर इट। उसको क्लास में लिख देने से स्पेस नहीं बनती है। यहाँ पे क्लास में स्टैटिक लिख दिया, स्पेस बन गई, ऐसा नहीं है। ये लास्ट लाइन लिखना जरूरी होता है, अभी बोला था आपको, तो वही बात यहाँ पे बता रहा है। देखो, डिक्लेयरिंग अ स्टैटिक मेंबर विद इन अ क्लास डज नॉट एलोकेट स्पेस। Instead, we must provide a global definition for it elsewhere outside the class. हमें global definition क्लास के बाहर उसकी देनी होती है। This is done by redeclaring the variable using scope resolution operator. तो देखो क्या बोला था, you need to redeclare it with scope resolution. वही बात यहाँ पे प्रॉपर्टी के फॉर्म में आप पढ़ रहे हो। This causes storage for the variable to be allocated. ऑब्जेक्ट के बनने से पहले ही जगह उसके लिए तैयार हो जाएगी। अभी प्रूव कर दूंगा एक एग्जाम्पल से। चलो यहां देखिए, अब मैंने एक क्लास बनाई जिसका नाम रखा शेयर्ड। इसमें एक डेटा फील्ड है ए जो कि स्टैटिक है, दूसरी डेटा फील्ड है बी जो नॉन स्टैटिक है। तो भाई स्टैटिक डाटा क्या होता है, क्लास डाटा। मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी मल्टीपल कॉपी नहीं बनेंगी, ए की मल्टीपल कॉपीज नहीं बनेंगी और बी की मल्टीपल कॉपीज बनेंगी। समझ में आई बात। फिर देखो, मैंने एक सेट फंक्शन लिखा है जो मेन से मैं 2 वैल्यूज भेजूंगा, वो एक वैल्यू आई और एक वैल्यू जे में लाएगा। जो आई में आया उसको ए तक डाल देंगे और जो जे में आया उसको बी में पहुंचा देंगे। नाउ लेट अस लुक एट द शो फंक्शन। शो फंक्शन's job is to simply display the contents of A and B. A is static, so we are giving appropriate message. This is static A and we are printing A. B is non-static, so we are again giving a meaningful message. This is non-static B and we will be trying to print the contents of V on the screen. So nothing special, सिंपल सी क्लास है, 2 सिंपल से फंक्शंस हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। ये लाल स्टेटमेंट जो लिखा है नीचे रेड कलर में, ये इंपॉर्टेंट है। आपको बताया था स्टैटिक डाटा नीड्स टू बी डिक्लेयर्ड एट ग्लोबल लेवल आउटसाइड द क्लास। तो रीडिक्लेरेशन आ गया। देखो, रिटर्न टाइप है, क्लास का नाम, स्कोप रेजोल्यूशन और स्टैटिक डेटा मेंबर का नाम। जैसे ही ये लिखोगे, ए के लिए मेमोरी तैयार हो गई है। अब देखो कैसे प्रूव करूंगा मैं इस बात को। हम यहां देखते हैं। देखिए कोड आ गया आपके सामने। यहां पे मैंने कितने ऑब्जेक्ट्स बनाए, एक्स और वाई, 2 ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं अपने क्लास के। एक्स और वाई क्लास में कितने डेटा मेंबर्स थे, ए और बी। मतलब एक्स डॉट ए, वाई डॉट ए, एक्स डॉट बी, वाई डॉट बी। ऐसा ही कुछ होगा ना जो सोच रहे हो, मगर नहीं, ए जो है वो शेयर्ड है, ये याद रखना है आपको। जब आपने एक्स ऑब्जेक्ट बनाया और आपने 1 1 सेट किया, तो ये 1 किस में जाएगा, ए में, और ये वाला 1 किस में जाएगा, बी के अंदर। ठीक है, आप शो करोगे तो क्या आएगा, स्टैटिक डाटा ए में क्या पहुंच गया 1 और नॉन स्टैटिक बी में क्या पहुंच गया 1। फिर आप वाई को कॉल करोगे और अब की बार 2 2 सेट करोगे, तो वाई के ए में क्या पहुंचेगा 2, वाई के बी में क्या पहुंचेगा 2, एंड व्हेन यू ट्राई टू शो इट, इट विल शो यू 2 2। बट व्हाट विल हैपन व्हेन यू ट्राई टू शो द वैल्यू ऑफ एक्स अगेन? What will be the output for this statement? Can you explain? Can anybody comment? Yes. नहीं 2 1 हो जाएगा ना बेटा। स्टैटिक कौन है, ए स्टैटिक है। 2 1 हो जाएगा सर, क्योंकि उसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि जो पहला वेरिएबल है ए वो स्टैटिक है, वो एक्स और वाई की अलग अलग कॉपी नहीं है, वो ए की कॉपी है। उसमें पहले एक्स ने 1 डाला मगर वाई ने अब 2 पहुंचा दिया उसमें। तो जब आप एक्स को शो करोगे तो अब 2 1 आना चाहिए। देखिए पहले 1 1 आया, फिर 2 2 आया और लास्ट में क्या आ गया 2 1। 1 1 तो यहां एक्स के लिए आया, 2 2 इसके लिए आया।
और to 1 x डॉट शो के लिए आया। मतलब क्या दिख रहा है कि y ने जो बदलाव a में लाया था वो x में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, बिकॉज x एंड y बोथ आर रेफरिंग टू द सेम कॉपी ऑफ a वेरिएबल। ठीक है, here a has been changed for both x and y because a is shared by both objects. This is something that I wanted to explain. Now notice that the integer a is declared both inside shared and outside of it. As mentioned earlier, this is necessary because declaration of a inside share does not allocate storage. तो क्लास में सिर्फ जो a लिख दिया था आपने, इससे मेमोरी एलोकेट नहीं होती है, मेमोरी ये लाइन लिखने से एलोकेट होती है। सबसे नीचे वाली लाइन से मेमोरी एलोकेशन होता है, ना कि पहली लाइन स्टैटिक एंट्री से। तो ये बात इस नोट में समझाई थी और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। The static member variable exists before any object of its class is created. ये बात काफी देर से हम बोल रहे हैं कि जो स्टैटिक मेंबर डेटा होता है, memory for that variable exists much before any object is created. So let us prove it now. Time has come to prove this thing. So let us see. We'll take an example again. Now look at this example. In this example, we have a class shared. In the public section, we have a shared data member A. ये देखो shared है, नॉन स्टैटिक इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ही डेटा मेंबर है, वो भी shared है। मतलब इस shared क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, इसकी तो एक ही कॉपी रहने वाली है। और जैसे ही ये वाला स्टेटमेंट लिखोगे बाहर वाला, मेमोरी रिजर्व हो जाएगी। ये बात भी आपको बताई है मैंने। तो चलो मेन देखते हैं इसका कैसा है। लेट अस लुक एट द मेन फंक्शन। जस्ट अ मिनट। So you created a class, you declared one static field, you reserved memory for this. मैंने बोला ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही से के लिए 2 बाइट रिजर्व हो जाएंगी। अगर रिजर्व हो गई हैं तो क्या मैं उसके अंदर वैल्यू रख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल रख सकता हूं। मेमोरी तैयार है, इंटीजर्स के लिए मेमोरी बनाई थी, उसमें एक वैल्यू रखना चाहता हूं 99। अगर मैं 99 रखूंगा, देखो मैंने शेयर क्लास का अभी तक कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाया है। आई हैव नॉट क्रिएटेड एनी ऑब्जेक्ट टिल दिस पॉइंट। मेन में आते ही मैंने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएशन नहीं किया। मैंने ये मान लिया कि बन चुका होगा, ऑब्जेक्ट बनाने से पहले ही बन चुका होगा। बन चुका है तो मैं उसमें 99 डाल सकता हूं, डाल दूंगा। फिर मैं प्रिंट करने की कोशिश करूंगा तो मुझे स्क्रीन पे क्या आएगा? I'll display a message. This is initial value of A, shared A. So I am getting this output. आप इस कोड को रन कर सकते हैं, you will get the output. Compiler you can decide which compiler you wish to use. You will definitely get output as 99. ठीक है, ये 99 जो पहली लाइन आ रही है, this is initial value of A as 99. No issues at all, it will work. Tried and tested कोड है, आप भी ट्राई कर सकते हैं। Now after this, at this line of code, you can see I have created an object. मैंने ऑब्जेक्ट कहां बनाया? इस जगह पे जाके बनाया। देखो ऊपर ऑब्जेक्ट नहीं था, ऑब्जेक्ट बनने से पहले ही ए के लिए मेमोरी रिजर्व हो गई थी और मैंने उसमें 99 डाला, आपको डिस्प्ले करके दिखाया, डिस्प्ले में आएगा, ये मैंने आपको बताया है, एक फैक्ट है, गारंटी है, ऐसा ही होगा। उसके बाद मैंने एक्स बना दिया, तो ये एक्स के लिए कोई अलग ए थोड़ा ना बनेगा, वही जो ए पहले बना है उसी को ये रेफर करेगा। और अगर मैं एक्स डॉट ए को डिस्प्ले करूंगा तो क्या आउटपुट आएगा? 99। समझ में आई बात या नहीं आई? है ना? अब देखो यहां पे ए को रेफर करने के लिए आप क्या लिख रहे थे? क्लास का नाम, क्योंकि ए किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है। ए किसकी प्रॉपर्टी है? क्लास डेटा है वो। सो इफ इट इज क्लास डेटा, इट शुड बी एक्सेस विद द नेम ऑफ क्लास। बट लुक एट दिस लाइन ऑफ कोड, x dot a. Deliberately I have shown you in red color font, a big size font. Why so? Because I wanted to emphasize that in order to display a, right way to display a is accessing a with the name of class, not with the name of an object. यहाँ x क्या कह रहा है? मेरा a. x dot a means what? x का a. भाई x का कोई अलग से a है क्या? a तो शेयर्ड रिसोर्स है ना, ठीक है। मगर ऐसा बोलने पे एरर नहीं आता। क्यों नहीं आता? देखो थोड़ा अपनापन होना चाहिए ना। अपनापन क्या कहता है? क्लास का स्टूडेंट जब लैब में पढ़ाई कर रहा हो और वो बोले मेरा कंप्यूटर, तो अलाउ करते हो। अगर वो बेचारा कहता है मेरा प्रिंटर, ठीक है, उसको ये नहीं कहना चाहिए मेरा प्रिंटर, क्योंकि और बच्चे बैठे हैं उनको भी वही प्रिंटर यूज करना है। मगर अगर वो कहता है मेरा प्रिंटर, तो क्या है कि उसमें क्या प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, तुम ऐसा बोल लो बेटा, बहुत अच्छी बात है, तुम अपना समझते हो चीजों को, दैट्स वेरी गुड, इट इज अलाउड, so you'll not get any error. But right way to access a should be with the name of class only, not with the name of an object. मगर अगर आप x dot a भी लिखोगे तब भी काम चलेगा, ये बताने की कोशिश की है। So notice how a is referred to
थ्रू द यूज ऑफ क्लास नेम एंड द स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इस जगह की बात हो रही है। सही तरीका कहता है कि ए एक क्लास का डेटा है, उसको क्लास नेम से एक्सेस करना। वो किसी ऑब्जेक्ट की जागीर नहीं है, ऑब्जेक्ट की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ऑब्जेक्ट के नाम से उसे पुकार तो सकते हो, डिस्प्ले एक्सेस कर सकते हो, मगर अवॉइड यूजिंग दिस। चल तो जाएगा मगर ये अच्छी बात नहीं है। ठीक है, कोई डाउट यहां तक, कोई क्वेश्चन, कहीं कोई कंफ्यूजन? नहीं तो आगे चलते हैं जी। अब सवाल आ गया यूज ऑफ स्टैटिक डेटा मेंबर्स। वन यूज ऑफ स्टैटिक मेंबर इज टू प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल टू सम शेयर्ड रिसोर्स। ये तो शुरुआत में ही बता दी बात मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल, यू माइट क्रिएट सेवरल ऑब्जेक्ट्स, ईच ऑफ विच नीड्स टू राइट टू अ स्पेसिफिक डिस्क फाइल क्लियरली। हाउ एवर ओनली वन ऑब्जेक्ट कैन बी अलाउड टू राइट टू अ पर्टिकुलर फाइल. In this case, you will want to declare a static variable that indicates when the file is in use and when it is free. So we need a common data member that will reflect the status of the file being used. Each object then interrogates this variable before writing to the file. If on interrogating you get to know that file is busy, means it is being written by somebody else, then you will have to wait for some time. Maybe indefinitely you are asked to wait. वो डेडलॉक सब वो सारी चीजें जो पढ़ के आए हो पहले, वो अभी भी कॉन्सेप्ट्स हैं। डेडलॉक भी आते हैं, सब कुछ होता है, सब चीजें चलती हैं। ठीक है, उनसे निकलने के तरीके और एल्गोरिथम्स भी पढ़ाई जाती हैं आपको, वो सब अलग चीजें हैं, मगर रियल में तो चीजें ऐसे ही होती हैं। ठीक है, तो कोई पूछ सकता है ना आपसे, भाई कोई भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूं तो इम्पोर्टेंट, तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप उसका सिर्फ सिंटेक्स सीख के बैठ जाओ। पहले तो पर्पस पता होना चाहिए कि क्या है ये, मैं क्यों पढ़ूं इसको, क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहे हैं सब नई नई चीजें पढ़ा के, है ना। आप कोई बिन थोड़ा ना हो कि मैं उसमें गार्बेज डाला जाऊं। आपके को कोई भी चीज सिखाई जा रही है तो आपको पहले पर्पस और मीनिंग क्लियर होना चाहिए कि भाई क्या जरूरत है, कहां जरूरत पड़ेगी इसकी। तो मैंने आपको जरूरत बताई। प्रिंटर्स वाले केस में सेमाफोर बनाना है, तब आपको जरूरत ऑपरेटिंग सिस्टम में पड़ती है इसकी। ठीक है, बहुत सारी जरूरतें हैं इसकी। अभी देखो एक और जरूरत आपको दिखाते हैं। यहां देखो एक काउंटर क्लास है। इस काउंटर क्लास में मैंने स्टैटिक इंट काउंट ले लिया। अपने काउंट को क्या कर दिया, स्टैटिक, मतलब हर ऑब्जेक्ट के लिए इसकी कॉपी नहीं बनने वाली है। दिस इज क्लास डेटा नाउ, मींस एवरी ऑब्जेक्ट दैट यू क्रिएट विल बी एक्सेसिंग द सेम काउंट। जितने ऑब्जेक्ट बनाओगे सब इसी काउंट को एक्सेस करेंगे। तो भाई जब जब ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट कौन बनाता है, ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट बनाता है ना। तो जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा मैं काउंट प्लस प्लस करूंगा, और जब ऑब्जेक्ट मरेगा तो मैं काउंट माइनस माइनस करूंगा। तो किसी भी समय मुझसे कह दोगे काउंट डिस्प्ले कर दो, मैंने काउंट को डिस्प्ले किया, सी आउट किया, और आपको देखने को मिला 5, इसका मतलब 5 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं। और काउंट की वैल्यू आ रही है 4, मतलब 4 ऑब्जेक्ट बने हुए हैं, क्योंकि जब जब ऑब्जेक्ट बना तब तक काउंट बढ़ा। अच्छा देखो, आप लोगों ने वेबसाइट्स पे देखा होगा, कई वेबसाइट्स दिखाती हैं 32,000 विजिटर्स हैव विजिटेड अवर पेज। तो मतलब हर विजिटर के लिए अगर वेरिएबल अलग लेके चलते तो फिर कैसे पता करते कि कितने लोग उसको एक्सेस कर चुके हैं। जब मैं जाऊंगा वहां पे विजिट करूंगा, काउंट बढ़ जाएगा, आप जाओगे काउंट बढ़ जाएगा, कोई भी जाएगा काउंट बढ़ जाएगा। मतलब काउंट हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग नहीं है ना, एक ही रखा हुआ है, स्टैटिक फील्ड रखा हुआ है। एवरीबडी इज मॉडिफाइंग द सेम वैल्यू। whenever anybody opens a page, that count is incremented. Same thing is happening here also in this code. Whenever we create an object, constructor is called. Without constructor, so we cannot create objects. And whenever constructor is called, we will increment count. When object goes out of scope, we'll decrement count and give a message to the user. समझ में आई बात? ये लाल वाली लाइन तो दोबारा समझाने की जरूरत नहीं है। इसके लिए मेमोरी ये लिख के ही रिजर्व होगी। काउंट की मेमोरी ऐसा लिखने से ही रिजर्व होती है, और ऑब्जेक्ट बनने से पहले हो जाती है। ये बात आपको बता चुके हैं। देखिए मेन के अंदर, इनसाइड मेन वी क्रिएटेड अवर फर्स्ट ऑब्जेक्ट O1. When this O1 is created, don't you think this constructor will be called and count will increase? You will get a message, object in existence, count value is 1. जब काउंटर काउंट को दिखाओगे ऑब्जेक्ट बनाने के बाद तो वो 1 हो चुका होगा। 1 कैसे हो गया? क्योंकि बेटा जी बताया था जब भी काउंट बनेगा वो 0 से इनिशियलाइज होगा। 0 से इनिशियलाइज हुआ, पहला ऑब्जेक्ट बना तो काउंट 1 हो जाएगा ना। फिर दूसरा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो काउंट कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। लास्ट स्टेटमेंट आपको क्या दिखा देगा? लास्ट स्टेटमेंट कह देगा काउंट हैज बिकम 2 नाउ। ठीक है, फिर देखो एक फंक्शन कॉल हो रहा है एफ। एफ इज नॉट अवर मेंबर फंक्शन। एफ कोई मेंबर फंक्शन नहीं है। मेंबर फंक्शन में देख लो एफ है ही नहीं कहीं पे भी। एफ इज आउटसाइड फंक्शन, डिक्लेयर्ड आउटसाइड एंड डिफाइंड आउटसाइड। ये एफ क्या कर रहा है? ये लोकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है टेम्प। तो भाई जब ये टेम्प बनेगा तब भी तो कंस्ट्रक्टर ही कॉल होगा।
तो ऑब्जेक्ट इन एग्जिस्टेंस नाउ यू विल गेट टू सी एस 3। फिर से बताता हूं, जब ये बनाया तो 1 हो गया, ये बनाया तो 2 हो गया, फिर आपने एफ कॉल कर दिया, जैसे ही एफ कॉल हुआ तो वो कितना हो जाएगा 3। आप इस फंक्शन में आ चुके हो, ये 3 हो गया। जैसे ही आप इस फंक्शन से बाहर निकलेंगे, लोकली क्रिएटेड ऑब्जेक्ट मर जाएगा। मर जाएगा मतलब डिस्ट्रक्टर कॉल्ड होगा। डिस्ट्रक्टर कॉल होगा तो क्या होगा, काउंट को घटा देगा। तो जो काउंट जो कि 1 2 और 3 यहां बना था अंदर आके, वो बाहर निकलने पे 2 हो चुका होगा, और आप उसको शो करेंगे तो क्या आएगा 2। तो पहले आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3 और फिर हो जाएगा 2। फिर आपका मेन बंद होगा। जब मेन बंद होगा तो बचे हुए दोनों ऑब्जेक्ट्स भी आपके डाई कर जाएंगे। जब वो डाई होंगे तो डिस्ट्रक्टर उनके लिए भी कॉल्ड होगा। तो आपको आउटपुट में आएगा डिस्ट्रक्टर कॉल्ड एक्जिस्टेंस इज 1, नाउ डिस्ट्रक्टर कॉल्ड 0 ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट। तो प्रोग्राम बंद होते होते 1 2 3 जो बने वो एक एक करके खत्म हो गए। समझ में आई बात? नहीं आई तो मुझे बताओ। चलो, अब स्टैटिक मेंबर डाटा समझ गए, तो अब टॉपिक क्या आ गया? नाउ लेट अस सी व्हाट इज दिस स्टैटिक डेटा मेंबर, सॉरी मेंबर फंक्शन, स्टैटिक मेंबर फंक्शन। तो क्या होता है, क्लास में ना सिर्फ डाटा को ही स्टैटिक नहीं बना सकते आप अपने फंक्शंस को भी स्टैटिक बना सकते हैं। मगर जब आप अपने फंक्शन को स्टैटिक बनाते हैं तो उस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं। क्या क्या रिस्ट्रिक्शंस लग जाती हैं, यहां कुछ उसके बारे में बातें लिखी हुई हैं, 1 2 3 4, विल डिस्कस देम वन बाय वन। सो दीज आर द थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेंबर, दैट व्हेनेवर वी क्रिएट अ स्टैटिक फंक्शन, functions can be made static, and whenever you make them static, some restrictions get imposed over them। तो पहले देखते हैं स्टैटिक बनाते कैसे हैं, है ना, फिर ये रिस्ट्रिक्शंस पढ़ लेंगे। तो यहां ध्यान से देखो, ये शो फंक्शन को मैंने क्या किया है, देखो स्टैटिक बना दिया। तो स्टैटिक बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, किसी भी फंक्शन के आगे स्टैटिक लिख दोगे वो स्टैटिक बन जाएगा। मगर जैसे ही उसको स्टैटिक बना दोगे, मैंने क्या कहा था, कुछ रिस्ट्रिक्शंस लग जाएंगी, वो आप भूल नहीं सकते। तो वो रिस्ट्रिक्शंस क्या है वो समझना होगा। ऐसा ही नहीं कि ब्लाइंडली किसी के भी आगे स्टैटिक लगाए हूं, जाके जमीन आसमान का फर्क पड़ जाएगा जैसे स्टैटिक लगाएंगे आप। तो वो क्या है जमीन आसमान का फर्क, उसको समझ लेते हैं। लेट अस सी व्हाट इज हियर ऑन दिस स्लाइड। सो लेट अस रीड द पॉइंट नंबर 1। इट सेज, if you make a function as static, then they may only directly refer to other static members of the class। स्टैटिक फंक्शन के बारे में एक बात हमेशा याद रखना कि स्टैटिक फंक्शन सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक मेंबर डाटा को एक्सेस कर सकता है, नॉन स्टैटिक डाटा को वो एक्सेस डायरेक्टली नहीं कर सकता। मैंने ये नहीं कहा कि कर ही नहीं पाएगा, डायरेक्टली नहीं कर सकता। ये डायरेक्टली को भी मैं और आपको इलेबोरेट करूंगा, अभी समझाऊंगा, ठीक है। तो पहली बात क्या है, कोड में फिर से दिखाता हूं, योर स्टैटिक फंक्शन शो कैन ओनली एक्सेस दिस जे वेरिएबल। जे कैसा है, स्टैटिक है ना, तो स्टैटिक शो के अंदर जे को तो डिस्प्ले कर सकते हो, आई को डिस्प्ले नहीं कर सकते। स्टैटिक फंक्शन कैन ओनली एक्सेस स्टैटिक डेटा, नॉन स्टैटिक को नहीं। देखो कमेंट में क्या लिखा है, सी आउट आई वाली लाइन को अगर कमेंट से हटाओगे तो नॉन स्टैटिक मेंबर आई कैनॉट बी एक्सेस वाला एरर आ जाएगा आपको। स्टैटिक फंक्शन सिर्फ स्टैटिक डाटा को एक्सेस करता है, नॉन स्टैटिक को नहीं। ये याद रखना, ये पॉइंट नंबर 1 में लिखा है, ठीक है। आप चला के देख लेना। द मोमेंट यू रिमूव दिस कमेंट सिंबल, ये स्लैश स्लैश हटाया, एरर आ जाएगा आपको, ठीक है, क्योंकि एक स्टैटिक फंक्शन है। स्टैटिक फंक्शन ओनली फॉर स्टैटिक डाटा, नॉट फॉर नॉन स्टैटिक। तो किसी को ब्लाइंडली स्टैटिक बनाए ऐसा मत कर देना। चलो पॉइंट नंबर 2, स्टैटिक मेंबर फंक्शन डज नॉट हैव अब दिस पॉइंटर। भाई ये बताओ मुझे, ये बात समझने के लिए ना पहली चीज तो वापस जाते हैं अपने एग्जाम्पल पे। हमने क्या बोला कि हमारा स्टैटिक फंक्शन आई को रेफर नहीं कर सकता, वो सिर्फ जे को रेफर कर सकता है। तो मेरे अगले पॉइंट का एक्सप्लेनेशन इसी बात में छुपा हुआ है, उसको समझते हैं। देखो आई को रेफर नहीं कर सकता, आई क्या है, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग आई होगा, है ना, हर ऑब्जेक्ट का आई अलग अलग होगा, मगर हर ऑब्जेक्ट का जे अलग नहीं होगा। हर ऑब्जेक्ट का J is a shared resource. It is static in nature. So only single copy will exist at one time in memory. But if we talk about I, for every individual object that we create, separate copy will exist. तो I तो ऑब्जेक्ट के संदर्भ में हो गया, I कॉन्टेक्ट किसके कॉन्टेक्स्ट में हो गया, ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में हो गया। एंड व्हाट अबाउट J, J क्लास के कॉन्टेक्स्ट में हो गया, ठीक है। तो ये बात समझ में हमेशा ध्यान रखनी है, I ऑब्जेक्ट के कॉन्टेक्स्ट में है और J
क्लास के कॉन्टेक्स्ट वाली बात है। तो हमने क्या कहा कि जे को एक्सेस कर सकता, आई को कर ही नहीं सकता। तो जब ये आई को कर ही नहीं सकता, आई ऑब्जेक्ट वाली चीज है, तो मतलब इस शो को कॉल कौन करेगा? कोई ऑब्जेक्ट तो कॉल ही नहीं करेगा ना। शो, ये देखो यहां नीचे s1 डॉट शो लिखा है, ये रॉन्ग वे है लिखने का। मैंने क्या कहा था, स्टैटिक चीजें जो होती हैं उनको कैसे कॉल करना चाहिए? क्लास के नाम से। क्लास नेम इज st डेटा, तो यहां राइट वे क्या होना चाहिए? st डेटा स्कोप रेजोल्यूशन शो। स्टैटिक चीजों को ऑब्जेक्ट के नाम से कॉल नहीं करना चाहिए। राइट वे है कि क्लास नेम और स्कोप रेजोल्यूशन से कॉलिंग करें। तो जब ये किसी ऑब्जेक्ट के लिए कॉलिंग ही नहीं इसकी होनी, तो ये आई को एक्सेस कैसे कर लेगा? कर ही नहीं सकता। और जब ऑब्जेक्ट के लिए कॉलिंग ही नहीं होनी है, तो दिस क्या होता है मुझे बताओ जरा। दिस एक पॉइंटर था जो ऑब्जेक्ट का पॉइंटर होता है, और इस फंक्शन को ऑब्जेक्ट ने कॉल नहीं करना है। ये ऑब्जेक्ट्स के द्वारा कॉल होने के लिए नहीं बनाया गया है, तो इसके अंदर दिस को नहीं भेज सकते, इसमें दिस नहीं होता है। ये फैक्ट है, इसको याद रखना है। समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आया क्वेश्चन पूछ सकते हो। क्वेश्चन भी नहीं पूछना है, समझ में भी नहीं आया तो फिर रट लेना, और कोई तीसरा ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, देयर कैनॉट बी स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वर्जन ऑफ द सेम फंक्शन। ये भी ध्यान रखना, ऐसी चालाकी नहीं चलेगी कि वॉइड शो बनाऊं एक स्टैटिक और फिर एक और वॉइड शो लिख दूं नॉन स्टैटिक। तो अगर शो को स्टैटिक बना दिया तो इस शो की नॉन स्टैटिक कॉपी इस क्लास में फिर नहीं ऐड हो सकती। या तो वो स्टैटिक होगा या वो नॉन स्टैटिक होगा। तो ओवरलोडिंग का जुगाड़ लगा के सोचेंगे एक स्टैटिक और एक नॉन स्टैटिक बना दें, नहीं चलने वाला, ऐसा कुछ नहीं कर पाएंगे आप। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो आपको बताए। फैक्ट नंबर 3 आपको बता दिया। लास्ट पॉइंट कहता है स्टैटिक मेंबर फंक्शन मे नॉट बी वर्चुअल, फाइनली दे कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड एज कॉन्स्ट और वॉलेटाइल। अब देखो इसमें एक टॉपिक है वर्चुअल, जो कि आप इनहेरिटेंस में पढ़ोगे। जब हम इनहेरिटेंस पढ़ेंगे तो मैं ये आपको वापस समझाऊंगा कि यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है, क्योंकि अभी आपको वर्चुअल मालूम ही नहीं होगा तो मैं क्या बताऊं। ठीक है। दूसरी चीज वॉलेटाइल भी अभी हमने नहीं पढ़ा, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। तो जो क्वालिफायर्स हमने नहीं पढ़े उनके बारे में अभी ज्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते, वरना फिर हम ऑफ द ट्रैक जा रहे होंगे। जो समझ रहे थे वो भी समझ में आना बंद हो जाएगा। तो इस चौथे पॉइंट को एज ऑफ नाउ सिर्फ रटने के लिए छोड़ देते हैं, समझने के लिए। तो जब वर्चुअल पढ़ेंगे ना इनहेरिटेंस, तब इसको मैं आपको समझाऊंगा। मैं भूल जाऊं तो आप पूछ लेना। ठीक है। कॉन्स्ट का मतलब ये होता है कि फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन कॉन्स्ट बना दिया तो फिर वो किसी डेटा को मॉडिफाई नहीं कर पाएगा। कॉन्स्ट फंक्शंस क्या होते हैं कि वो अभी आपके नॉर्मल फंक्शंस में आप किसी भी वेरिएबल को बढ़ा घटा जैसे मर्जी जो मर्जी कर सकते हो, मगर कॉन्स्ट बना दोगे तो फिर उसकी बॉडी चेंज नहीं हो सकती। उसकी बॉडी जैसी है फिर उसकी डेफिनेशन कांस्टेंट रहेगी। वो जो लाइन ऑफ कोड लिख दिया बस उसी के लिए चलेगा। तो या तो स्टैटिक बनाओ या कॉन्स्ट बनाओ, दो काम एक साथ नहीं हो सकते, ये बता रहे हैं यहाँ पे। कोड देख लो, कोड वापस आपको दिखा देता हूं। st data इज योर क्लास, i इज नॉन स्टैटिक, j इज स्टैटिक। सेट फंक्शन आपके पास है। सेट फंक्शन क्योंकि नॉर्मल फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन दोनों को एक्सेस कर लेगा, वो i को भी एक्सेस कर लेगा और j को भी एक्सेस कर लेगा। मगर अगर फंक्शन को स्टैटिक बनाओगे तो सिर्फ वो स्टैटिक यानी j को एक्सेस कर सकता है, i को नहीं। ठीक है। j की कॉपी ऐसे बनती है, आप यहाँ पे ये काम करके देख सकते हैं। s1 डॉट शो कॉल कर रहे हो, कर सकते हो, ऑब्जेक्ट नेम से लिखना नहीं चाहिए, ये मैं आपको बता चुका हूं। आपको यहाँ पे लिखना चाहिए था st डेटा स्कोप रेजोल्यूशन शो। शो करने पे आपको j की वैल्यू नजर आएगी, i की वैल्यू नजर नहीं आएगी। मगर मैंने क्या कहा था, मेरे हर शब्द को ध्यान से समझना जरूरी रहता है। मैंने एम्फसाइज किया था डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली कर सकते हैं। कैसे? इस स्लाइड पे देखिए। अगर शो से आई को भी डिस्प्ले कराना हो तो आप, आई क्या होता है? किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी। तो ये आई किस ऑब्जेक्ट का आई है, वो ऑब्जेक्ट को एज आर्ग्यूमेंट फंक्शन में भेज दीजिए। पिछले शो में राउंड ब्रैकेट्स खाली हैं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं भेजा गया है यहां पे। मगर लुक एट दिस डेफिनेशन ऑफ शो। इन दिस डेफिनेशन ऑफ शो आई हैव पास्ड इन एन आर्ग्यूमेंट, वो एक ऑब्जेक्ट है। तो ये आई किसका है? उस ऑब्जेक्ट का। अब चल जाएगा काम। जे को तो ये एक्सेस कर ही रहा था, आई को नहीं कर पा रहा था, मगर अब ये आई को एक्सेस कर लेगा, क्योंकि किस आई को एक्सेस करना है? जी s1 के आई को कर सकता है। तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट, है ना। थिंग्स यू कैन मेक देम हैपन, बट लिटिल एक्स्ट्रा एफर्ट इज इन्वॉल्व। सो इज दिस अंडरस्टूड? इज द टॉपिक क्लियर टू ऑल? इफ यू हैव एनी डाउट्स प्लीज आस्क एज मेनी क्वेश्चंस यू फील लाइक। जितना मर्जी पूछिए, जहां मर्जी कंफ्यूजन है बताइए मुझे। So this was all about static data members and static member functions from my side. Now you can ask questions.
So this was all for today, and I shall continue with the topic in my next video soon. If you found my lecture informative and you enjoyed that, then kindly like the video and do subscribe the channel. Till then, goodbye and stay safe. Thank you.